Hello everyone. Our today's topic is chromosomal theory of inheritance. Okay. As you all know, Mendel worked on the genes and proposed the laws of inheritance. ठीक है? And he proposed the laws of independent assortment and laws of segregation also. He done a lots of work on the alleles and the characters or the traits or the genes. Later on, so many scientists worked on that principles, that is laws of independent assortment or laws of segregation, right? Then Sutter and Boveri, the two scientists in 1902 worked on the chromosomes, right? And he correlate the chromosomes to the independent assortment law, or he connected the chromosomes to the genes also, right? As you all know, chromosomes are the vehicles of the inheritance. They carry the information from one generation to the another. But Mendel explained about the genes, that genes are the units which carry the information, or these are the hereditary units which carry the information from one generation to the another. As you all know, genes are present on the specific locus of the chromosome's arms. These locus characters are said to be alleles, right? So what is the basic similarity between the genes or the alleles and the chromosomes? They both divide during the cell division. Chromosomes as well as the genes or alleles divide themselves during the cell division, right? They do the meiosis, they do the reduction division, after that they become haploid and transfer to the next generation to form the diploid organism. For example, they do the meiosis. Meiosis is the reduction division in human. They do the meiosis. Meiosis is the reduction division. Then the chromosome number or the alleles number become half, that is 23. Half रह जाएगा. Then 23 chromosomes, number of chromosomes or the alleles comes from the male, and the another 23 comes from the female and form the diploid organism, right? So he explained about the chromosomes or chromosomal theory of inheritance, how the chromosome take the alleles or the genes along with it and transfer to the new progeny or the new generation, right? This is the meiocyte. Meiocyte is the gamete mother cell. Okay, meiocyte is the gamete mother cell. This is the chromosome arms, ठीक है? Chromatid, one of the chromatid and another chromatid. meiocyte gamete mother cell है, ठीक है? आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसका बाईवेलेंट फेज दिखा दी क्रोमोसोम की, ये मोनोवेलेंट फेज है, एंड दिस इज द बाईवेलेंट फेज ऑफ द क्रोमोसोम. देन दे डिवाइड, प्रोफेज 1 चल रही है और दोनों में डिवीजन हो गया. पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सो मैनी वेरिएशंस आल्सो टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी लाइक दैट कि ऐसा हो जाता है, ठीक है, या तो इसमें ऐसा हो जाएगा कि एक क्रोमोसोम को मैंने फिलअप कर दिया है, आपकी बुक में शायद कलर से दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप उससे पढ़ लेंगे, एक बार देख लेंगे डायग्राम, ये वाला डायग्राम भी सफिशिएंट है, ठीक है. एक आपका ये वाला क्रोमोसोम है, ठीक है. तो एक तो पॉसिबिलिटी ये हो गई, जो जीन्स है वो कैसे हो गए, सिग्रीगेट हो गए, और जो क्रोमोसोम है यहाँ पे डिवाइड होने शुरू हो गए. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे क्या हुआ है, आर्म्स चेंज हुई हैं. आप देखें यहाँ पे मैंने फिल किया हुआ था. एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे व्हेनेवर द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन द एनाफेज 1, जब क्रॉसिंग ओवर होगा, यू ऑल नो दैट द चेंजेस ऑफ आर्म्स टेक्स प्लेस. जब आर्म्स चेंज होती हैं तो ऊपर क्या होंगे, उनके एलील्स भी इंटरचेंज हो जाएंगे. जब सिनेप्स होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार फिर से बताती हूँ बेटा आपको. क्रॉसिंग ओवर होता है ऐसे, ये क्रोमोसोम और ये दूसरा, आपको रिकॉल हो जाएगा ये टॉपिक. तो जब ये आर्म्स सिनेप्स हो जाता है,
तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन है कि इसकी आर्म तो आ गई यहाँ पर और इस वाले क्रोमोसोम की आर्म यहाँ पर आ गई। पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि ऐसा नहीं भी हो सकता, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये है, ठीक है। देन द डिवीजन टेक्स प्लेस, दिस इज मियोसिस 1 एंड सेकेंड वन इज मियोसिस 2 और एनाफेज 2। तो दीज कैरेक्टर, जो भी इसके पास कैरेक्टर है, विल ट्रांसफर टू द अनदर सेल, राइट, एंड देन हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एज इट इज कैरेक्टर्स यहाँ चले गए। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज देयर कि यहाँ पर क्या हुआ था, सिनेप्स हो गया था या क्रॉसिंग ओवर हो गया था और ये आर्म्स जो है चेंज हो गई थी, ये कैरेक्टर आ गया था इस पे, दिस इज ऑल्सो द वेरिएशन, ठीक है। इसको वेरिएशन भी हो सकता है, यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं कैरेक्टर्स में, और ये एज इट इज द वेरिएशन और द चेंजिंग कैरेक्टर विल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे ऐसे ही इसका डिवीजन हो गया और ये नेक्स्ट डॉटर सेल पे जो है गैमेट सेल पे वो ट्रांसफर हो गया। सो द मेन पर्पस इज और द कंक्लूजन इज दैट the characters travel from one parent to the another offspring or from one generation to the another generation by means of chromosomes or by means of genes which are present on the arms of chromosomes. Both the things are same, both the characters are same, right? So this is all about the chromosomal theory of inheritance. Then Sutton and Boveri done the experiments on the Drosophila melanogaster. This is the zoological name of the fly that is known as Drosophila melanogaster. This is a specific name. ये एग्जाम में आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको लर्न कर लेंगे, इसका नेम आता है 1 मार्क में कई बार लिखने के लिए। सो ड्रोसोफिला की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसने वो क्यों लिया, क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल जो है 2 वीक्स की है, ठीक है। बहुत जल्दी वो कल्चर मीडियम में लैब में उसकी जो है प्रोजेनी बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि सो मैनी वेरिएशंस टेक्स प्लेस। हाफ ऑफ द गैमेट कम्स फ्रॉम द स्पर्म, हाफ ऑफ द कैरेक्टर्स कम्स फ्रॉम द एग्स ऑल्सो, ठीक है। तो आधे कैरेक्टर्स कहाँ से आते हैं, एग्स से, और आधे कैरेक्टर्स कहाँ से आ रहे हैं, स्पर्म से। और द कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सारे जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस में कौन है, क्रोमोसोम्स हैं, और क्रोमोसोम्स के आर्म्स पे कौन है, जीन्स हैं, ठीक है। तो जीन्स से सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं या फिर क्रोमोसोम से कैरेक्टर आ रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो मैनी वेरिएशंस आल्सो टेक्स प्लेस whenever the traveling of chromosome or the gene takes place from one generation to the another. Next very short topic is there, that is test cross. Test cross is the cross in which we do test cross. This is also in your syllabus, question आता है इसमें बहुत छोटा 2 नंबर में, ठीक है। Test cross is the cross in which we do the cross of the hybrid to the recessive trait. For example, आपने यहाँ पे कैपिटल टी ले लिया, ये स्मॉल टी, आप जैसे भी करते हैं क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल टी, इसका जब हम क्रॉस करते हैं तो क्या बनकर आता है हमारे पास, सारे जो हमारे पास कैरेक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। सो दीज आर द हाइब्रिड्स। व्हेन वी डू द सेल्फिंग with these hybrids to crossing with these hybrids to the recessive trait. recessive trait हमारा क्या है, ये है, जब हमने इसके साथ क्रॉसिंग करा दी हाइब्रिड प्लांट की कैपिटल टी स्मॉल टी वाले की, विच इज टॉल इन कैरेक्टर, कि हमने ड्वार्फ वाले से करा दी जब क्रॉसिंग, तो हमारे पास 50% कैसे आ जाते हैं, टॉल प्लांट, और 50% हमारे पास कैसे आ जाते हैं, ड्वार्फ प्लांट। दिस इज द रेशो of tall and dwarf 1:1 or